اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی. اور میرے بھائی جس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، میرے بھائی وہ دنیا کے لحاظ سے کتنے بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو، جو کہ سب سے بڑا عہدہ دنیا میں بادشاہت کا ہے، وزارت کا ہے، صدارت کا ہے، چیزوں کا ہے. میرے بھائی اس انسان کو دنیا کی ساری چیزیں مل گئی لیکن ایمان سے محروم رہ گیا. میرے بھائی یہ شخص دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں ہمیشہ کی زندگی جو آنے والی ہے اس میں بھی ناکام. لیکن میرے بھائی ایک جھونپڑی کا رہنے والا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، سونے کے لیے بستر نہیں، زندگی گزارنے کے لیے گھر نہیں، دکانیں نہیں، مارکیٹیں نہیں، کچھ بھی نہیں ان کے ساتھ. لیکن میرے بھائی اس شخص کے ساتھ ایمان موجود ہے، تو یہ میرے بھائی دنیا کی بادشاہوں سے زیادہ کامیاب ہے. ان لوگوں سے زیادہ کامیاب ہے جو کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں مال اور چیزوں کے لحاظ سے. میرے بھائی یہ شخص بہت بڑا کامیاب ہے ان ایمان کی وجہ سے. اور میرے بھائی اس ایمان کی قدردانی اور اس ایمان کی قیمت اس وقت معلوم ہوگی جب اللہ رب العزت اس ایمان والے کو جہنم سے نکال کر، اپنی گناہوں کی وجہ سے جو جہنم میں گیا ہے وہاں سے نکال کر، اور اللہ رب العزت اس کو اس دنیا کی 10 گنا جنت عطا فرمائے گا، تو بندے کو اس وقت ایمان کی قیمت کے پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ نے ہمیں کتنا بڑا چیز دیا ہے جو کہ ایمان ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان دنیا میں اللہ کی نافرمانی کچھ نہ کچھ کیا ہو، اللہ کے حضور کے طریقے کے خلاف زندگی گزاری ہو، تو ان گناہوں کی وجہ سے جب بندہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم کی وہ حالات جو کبھی زندگی میں اس نے دیکھی نہیں ہے وہاں چلا جائے گا اور یہ حالات دیکھیں گے صرف، تو اتنا پریشان ہوگا کہ یا اللہ یہ کس حالات ہیں جو کبھی زندگی میں دیکھے نہیں ہیں. اور جب جہنمی لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو جائے گا جو کہ زیادہ کافر ہوں گے، تو کافر بھی مسلمان کو کہیں گے کہ آپ نے تو دنیا میں کلمہ پڑھا تھا، ایمان والا تھا، لیکن آج آپ بھی ہمارے پاس جہنم میں آئے ہیں اور ہمارے ساتھ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کو بھی ایمان کی وجہ کے ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ سزا مل رہی ہے. تو میرے بھائی اللہ جل شانہ بہت بڑی کریم ذات ہے، جس ذات نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا ہے. وہ باتیں اللہ جل شانہ اپنے عرش پہ سنے کہ کافر لوگ مسلمان کو تنا دیتا ہے ایمان پر، اللہ جل شانہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ رب العزت جہنم کے دروں کو فرمائے گا کہ چلے جاؤ، جہنم میں چلے جاؤ، ہر اس شخص کو نکال دو جو کسی بھی وقت مجھ سے ڈرا ہو اور جس نے یہ کلمہ پڑھا ہو کہ لا الہ الا اللہ، اس کو نکال کر جنت میں داخل فرما دو. پھر میرے بھائی اس جہنم کے حالات سے بندہ تھوڑا سا آگے نکل جائے
मुकम्मल निकला हुआ नहीं होगा, थोड़ा सा भी निकल जाए उन हालात से, तो मेरे भाई इस वक्त ईमान वालों को पता चलेगा कि है मेरी ईमान की कितनी कीमत थी जो अल्लाह ने हमें नसीब किया। जब पूरा निकल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा जैसे एक बंदा आग में जल रहा है और उसको आग से निकाल कर और फौरन इसकी जिस्म बिल्कुल टिक हो जाए, तो कितना खुशी होगी कि हाँ मैं कितनी गम से निकल गया, कितनी तकलीफ से निकल गया। तो मेरे भाई ये शख्स इतनी अजीब खुशी का मंजर देखेगा, जन्नत को अभी तक जाया नहीं होगा। जब निकलेगा तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करेगा कि अल्लाह तूने कितना बड़ा हमें ईमान नसीब किया था, कि अल्लाह ईमान की वजह से तूने मुझे जहन्नम से बचाया। और मेरे भाई अदना से अदना ईमान वाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल व आला मेरे भाई इस दुनिया की 10 गुना जन्नत अल्लाह रब्बुल इज्जत इस शख्स को अता फरमाएगा। तो मेरे भाई उस वक्त कुछ मुहद्दिसीन ने लिखा है कि वो रोएगा कि अल्लाह मैं तो इन नेमतों का काबिल ही नहीं था, अल्लाह मैं तो इन नेमतों का काबिल नहीं था कि अल्लाह तूने मुझे जन्नत नसीब फरमाई। तो मेरे भाई इस वक्त बंदे को ईमान का पता चलेगा कि अल्लाह ने इस ईमान की कीमत कितना लगाई थी, अल्लाह ने कितना बड़ा ईमान नसीब किया है। तो मेरे भाई ईमान लाना अल्लाह की फजल से बहुत बड़ा आसान है, लेकिन मेरे भाई ईमान जो जिंदगी चाहता है, ईमान जो तकाजा करती है, मेरे भाई इसके जिंदगी इसके मुताबिक जिंदगी गुजारना अल्लाह की फजल व करम से बड़ा आसान है। अगर अल्लाह की फजल ना हुई तो मेरे भाई ईमान की जिंदगी नसीब नहीं हुई, तो मेरे भाई ईमान की जिंदगी नसीब न होने की वजह से यह भी हो सकता है कि ईमान भी चला जाए। ईमान की जिंदगी क्या है मेरे भाई? ईमान की जिंदगी अल्लाह के बगैर जितने भी चीजें हैं ये सारे के सारे जो है ये मेरे भाई ईमान के खिलाफ है। जो अल्लाह के मुताबिक हैं, जो अल्लाह फरमा रहे हैं, इनके जिंदगी को इनके पीछे जिंदगी गुजारना ये ईमान के मुताबिक है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटकर जो जिंदगी है वो ईमान का तकाजा नहीं है। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है वो मेरे भाई ईमान है और ईमान की जिंदगी है। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आज हम खुद सोच लें हमने ईमान लाया है, लेकिन ईमान की जिंदगी हमने कहां तक इख्तियार कर रखी है। जो ईमान हमसे तकाजा करते हैं उस ईमान की जिंदगी मेरी इस 5 फुट बदन में कितना है, और लोगों को छोड़ दो। जो अल्लाह से वादा किया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ये ईमान जो हमसे तकाजा करते हैं इस 5 फुट जिंदगी में जो कि हमारा सिर्फ अपना बदन है, इसमें अल्लाह के हुक्म नबी का तरीका जो कि ईमान की जिंदगी है वो कितना मैंने इख्तियार किया है। क्या मैं इनके नीचे जा रहा हूं या इससे हट के जा रहा हूं? तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान के साथ ईमान की जिंदगी जो बंदा गुजारेगा इसी के साथ अल्लाह पाक का वादा है कि आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब कर दूंगा। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आखिर वक्त में बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े औलिया अल्लाह
आखिरी वक्त में अल्लाह से डरते थे कि अल्लाह ईमान तो लाया है, अल्लाह मैंने ईमान के पीछे जिंदगी भी गुजारी है कि नहीं, कि इनकी वजह से हमारा ईमान बाकी रहेगा। अल्लाह अकबर। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैहि है, बहुत बड़ा फलसफी आलिम, तफसीर कबीर लिखा है उसने। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी बड़ी उलूम दिए थे, अल्लाह ने उसको, बड़े बड़े हनका थे इनके, बड़े बड़े मुरीद थे इनके, मुरीद भी अल्लाह के वली थे। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन आखिरी वक्त में अल्लाह से इतने डरते थे कि अल्लाह ईमान तो लाया है, या अल्लाह पता नहीं है मैंने ईमान के मुताबिक जिंदगी भी गुजारी है कि नहीं। मेरे भाई शागिर्दों के साथ बैठा हुआ था, आखिरी वक्त था तकरीबन। मुफ्ती मोहम्मद अमीन उकाड़वी, उसी ने लिखा है कि अपनी शागिर्दों के साथ बैठा हुआ था, अचानक बेहोश हो जाते और बेहोश होते ही जबान से ये लफ्ज निकलता, चरवाहा बाजी ले गया। फिर जब होश पे आता, शागिर्द भी साथ बैठे हुए थे हिदमत करने के लिए, तो फिर अचानक बेहोश हो जाता। बेहोश होते ही अल्फाज जबान से अचानक निकलते थे, चरवाहा बाजी ले गया। 2-3 दफा ऐसा हुआ। तीसरी दफा जब होश पे आया तो सारे शागिर्द बैठे हुए थे, सारे शागिर्दों ने अर्ज किया, हजरत जी आपको 2-3 बार बेहोशी आ गई, लेकिन बेहोश होते ही आपकी जबान से एक लफ्ज निकलता है कि चरवाहा बाजी ले गया, इसका क्या मकसद है? उसने कहा कि एक मर्तबा में सफर पे जा रहा था इल्म हासिल करने के लिए, रास्ते में एक चरवाहा मिला, बकरी चराने वाला। रात हो गई, हमने एक जगह दोनों ने पड़ाव डाला रात गुजारने के लिए। वीरान सी जगह थी और महीना रमजानुल मुबारक था, 27 रमजान की शाब थी। फिर मैंने इनसे कहा कि हो सके आज लैलतुल कद्र का इख्तिमाल है, लैलतुल कद्र का एहतमाल है, अब भी अल्लाह से दुआ कीजिए, हम भी अल्लाह से दुआ करेंगे, हो सके अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। तो क्या कहा? हजरत फरमाते हैं शागिर्दों को कि उसने, चरवाहे ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हमारी आखिरी खातिमा ईमान पे नसीब फरमा। और हमने भी अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हमारे इल्म का पैमाना वसी कर दो, कि अल्लाह हमारे पास दूर दूर से लोग आकर यहाँ ईमान, कुरान, हदीस की जिंदगी सीख कर वहां चले जाकर अपने इलाके में मेहनत करें। हमने भी अल्लाह से दुआ की और उसने भी अल्लाह से दुआ की। हजरत फरमाते हैं कि जब मैंने देखा तो कुछ वक्त के बाद, थोड़ी देर के बाद, चरवाहे की दुआ भी कबूल हो गई, हमारी दुआ भी कबूल हो गई। और मैंने देखा कि चरवाहे को उसी वक्त मौत आ गया और कलमा पढ़कर दुनिया से चला गया। और अब मैं जिंदा हूं, मुझे पता नहीं है कि मुझे ईमान नसीब होगा कि नहीं, क्योंकि ईमान तो लाया है, पता नहीं है ईमान की जिंदगी भी हमने गुजारी है कि नहीं। तो अब मैं डरता हूं, इसलिए मेरी जबान से ये लफ्ज निकलता है कि चरवाहा बाजी ले गया।
وہ تو کامیاب ہو گیا جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا. ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے ہمیں ایمان نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. آخری وقت میں میرے بھائی دوست بزرگوں، شیطان بہت بڑا محنت کرتا ہے. انسان کی جب نزع کی حالت ہوتی ہے، انسان کو کبھی کبھی اپنی زندگی، اپنی جسم کا پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اپنی بدن کے ساتھ. اس سے حالات ہوتے، اللہ آسانی فرمائے. تو میرے بھائی دوست بزرگوں، اس وقت جب امام رازی رحمت اللہ علیہ دنیا سے جا رہا ہے تو حضرت نے فرمایا، شاگرد ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ بار بار بولتے تھے، اللہ کی ذات پر دلائل پیش کرتے تھے. ہم نے سمجھا، شاگردوں نے کہا کہ شیطان آیا ہے ہمارے شیخ کو، ہمارے حضرت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ایمان سے حلی کروا دیتا ہے. تو کیا ہوا؟ آخری وقت میں عجیب انداز سے شیطان آیا، حضرت شیخ کو کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو فلسفی عالم تھا، دلائل ان کے ساتھ بہت بڑے تھے، عقلی دلائل، نقلی دلائل، سارے دلائل. تو شیطان آیا اور کہا کہ حضرت آپ تو مسلمان ہیں، ایمان لایا ہے اور بہت بڑے عالم ہو، آپ بہت کچھ سیکھا پڑھا ہے، لیکن جب آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں، آپ کے ساتھ اس کی کیا دلیل ہے؟ جب آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں تو آپ کے ساتھ اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ پھر حضرت نے، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی ذات پر 101 دلائل پیش کیے کہ اللہ موجود ہے، اللہ ہے. لیکن اس کی اپنی شیخ کو، شیخ نے توجہ کی. پھر کیا ہوا؟ اس کو پتا چلا کہ امام رازی پر شیطان نے حملہ کیا ہوا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں ہے. انہوں نے توجہ کر کے اور کہا کہ اے امام رازی، شیطان کو یہ کہو کہ میں اللہ کو بغیر دلائل کے مانتا ہوں. پھر اللہ نے کرم کیا اور دنیا کے ساتھ، دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، جس ساتھی نے ایمان کی زندگی، ایمان کے نیچے زندگی گزاری ہو، تو میرے بھائی ایمان کی حفاظت کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن میرے بھائی ایمان کے نیچے زندگی گزارنے کی کوشش بھی نہ کیا ہو تو میرے بھائی آخری وقت میں عجیب حالات آتے ہیں بندے پر. اگر ایمان مضبوط نہ ہو، ایمان کمزور ہو، تو میرے بھائی آخری وقت میں ایمان کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں ایمان نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائی اللہ کے راستے میں نکلنا اس لیے ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر دیں. اور ایمان مضبوط ہوتا ہے ایمان کی محنت سے. بغیر ایمان کی محنت کے علاوہ میرے بھائی کسی اور چیز سے ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے، نہ ایمان محفوظ ہوتا ہے. ایمانی مجلس میں بیٹھیں گے، ایمانی حلقوں میں بیٹھیں گے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے، اس کے سنیں گے، اس کی قدردانی کریں گے، اس کی آداب کریں گے، تو اللہ جل شانہ کریم ذات ہے کہ اللہ پاک ایمان کی حفاظت فرمائے گا. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ایمان سیکھنا ایمان کی مجلسوں کے ساتھ شرط ہے. ایمان کی زندگی اختیار کرنا، ایمان کے محفلوں میں جانا، ایمان کی باتیں کانوں سے سننا، ایمان کی باتیں آنکھوں سے دیکھنا، ایمان کی باتیں ہاتھوں سے اس کے لیے بٹھانا، اور ایمان کے لیے میرے بھائی
इन दो पाँव से चलना, इसी से ही मेरे भाई ईमान की जिंदगी नसीब होगी कि जब हम इनके पास चलेंगे और सुनेंगे, बोलेंगे, तो मेरे भाई ईमान की हिफाजत होगी। इसके अलावा ईमान की हिफाजत मुश्किल होता है। तो मेरे भाई ईमान की सबसे बड़ा तकाजा अमाल है। ईमान के बाद अमाल में बंदा लग जाएगा तो कामयाबी होगी, अमाल में नहीं लगेगा तो मेरे भाई मुश्किल है। और सबसे बड़ा अमल वो मेरे भाई नमाज है। नमाज अल्लाह की ऐसी बड़ी दौलत है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वसीयत ये फरमाई है कि मेरी उम्मत नमाज नहीं छोड़ना, मेरी उम्मत नमाज नहीं छोड़ना, मेरी उम्मत नमाज नहीं छोड़ना। मेरे भाई नमाज ऐसा चीज कि अल्लाह पाक ने कसम खाकर फरमाया है। हजरत अम्मा जान आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा तशरीफ लाए सहाबे किराम के पास। मारिफुल हदीस ने यह हदीस नकल फरमाई है। तो सहाबे किराम के पास तशरीफ फरमा हुए और सहाबे किराम को अर्ज किया है, सहाबा आपको मालूम है अल्लाह जल्ल शानहु क्या इरशाद फरमाते हैं? सहाबे किराम ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी आप खूब जानते हैं, हमें पता नहीं। फिर दोबारा तवज्जो करने के लिए फरमाया, सहाबा आपको मालूम है कि अल्लाह पाक ने क्या इरशाद फरमाया है? फिर सहाबे किराम ने वही जवाब दिया। तीसरी मर्तबा फिर कहा कि सहाबा आपको मालूम है कि अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमाते हैं? फिर सहाबे किराम ने वही जवाब दिया। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को अपनी तरफ मुकम्मल मुतवज्जो करके इसके बाद इरशाद फरमाया कि सहाबा अल्लाह जल्ल शानहु अपनी इज्जत पे कसम खाकर कि मेरी अपनी इज्जत की कसम, मेरी अपनी जलाल की कसम और मेरी अपनी बड़ाई की कसम, तीन कसम के बाद इरशाद फरमाया कि जो बंदा इन 5 नमाजों को उनके वक्त पर अदा करने का एहतमाम करता है, मैं इसको अपने जिम्मेदारी से जन्नत में दाखिल करूंगा। जो इन 5 नमाजों को उनके वक्त पर एहतमाम नहीं करता अदा करने का, उस पर मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं। मेरे भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत को कसम की क्या हाजत, की जरूरत? लेकिन अपने बंदों को मुतमईन करते हैं, क्योंकि बंदा जो है ना कमजोर है। कभी कभी शैतान हमले करके, नफ्स हमले करके ईमान कमजोर हो जाता है, फिर बंदे की जहन में शक आता है। मेरे भाई अल्लाह पाक ने अपने बंदों को क्या कहा कि अपनी इज्जत की कसम, मेरी जलाल की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, अल्लाह पाक कसम का कर इरशाद फरमाते हैं। मेरे भाई अल्लाह पाक जिस चीज पर कसम कह कर कहता है, अल्लाह की हर एक अल्लाह पाक की हर एक हुक्म बगैर कसम के हमारे यहाँ कबूल है। और मेरे भाई इसमें कामयाबी है, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाते हैं इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। अल्लाह वो जात है मेरे भाई कि जब वादा करता है तो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। तो मेरे भाई अल्लाह जल्ल शानहु इसके बावजूद भी कसम कहकर फरमाते हैं कि मेरी कसम है कि मैं तुझे जन्नत अता करूंगा। सारी दुनिया के इंसान मुसलमान जितने भी अमाल करते हैं इसी वजह से करते हैं कि हमें जन्नत नसीब हो जाए। लेकिन मेरे भाई वो वादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज के साथ रखा है। लेकिन नमाज मेरे भाई आलिमाना नमाज हो, ऐसा नमाज नहीं, आलिमाना नमाज। आलिमाना नमाज किया है, आलिमाना नमाज ये है कि आपको पता हो कि मेरे नमाज में कितने फराइज हैं, कितने वजबात हैं, कितने मुस्तहबात हैं। हाँ, किस तरह नमाज पढ़ूं, किस तरह नमाज अदा हो जाएगा, किस तरह अदा नहीं हो जाएगा, इन सारी बातों का इल्म हो तो आपका नमाज सही होगा। इसका इल्म नहीं हो तो मेरे भाई ये नमाज सही नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरे भाई इस मसाइल को सीखने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा अपने घर से निकलता है एक मसले को सीखने के लिए, एक मसला दरपेश हुआ, घर से निकला, मौलवी साहब की तरफ चल रहा है, मुफ्ती साहब के पास जा रहे हैं कि मैं इस मसले को हल करूं ताकि हमें इसका इल्म हो जाए।
तो मेरे भाई अल्लाह जल्ल शानहू इसके एक एक कदम पर एक एक गुनाह को मिटा देता है और एक एक नेकी अल्लाह पाक दे देता है। और अगर इसी रास्ते में मौत आई, क़यामत के दिन उलमा के साथ हशर होगा। तो मेरे भाई अल्लाह पाक की अहकामात की इल्म सीखना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मराक़िउल फलाह की हशिये पर एक हदीस लिखी है। उसमें लिखा है कि जो आलिम की इकराम करेगा, जो एक आलिम की इकराम करेगा, अल्लाह जल्ल शानहू इसको इतना अजर अता फरमाता है जैसे 70 अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को घर पर दावत के लिए बुला दिया। तो मेरे भाई उलमा को अल्लाह ने इज्जत किसी वजह से दिया है, अल्लाह की अहकामात की इल्म हासिल करके अल्लाह ने इसको ये मकाम दिया है। तो मेरे भाई ये मकाम हर किसी को हासिल हो सकता है, लेकिन मसाइल पूछने में हर वक्त जहन में एक मसला हो। हाँ, हमारे ईमान वाले साथी, तबलीग में की मेहनत वाले साथी, इसकी जहन में हर वक्त एक मसला हो। जब तुम मुफ्ती साहब आलिम के साथ शबे पे जुम्मे पे जाऊंगा, तालीम के हल्के में जाऊंगा, इज्तिमा पे जाऊंगा, उलमाए किराम के मजलिस में जाऊंगा, तो हर वक्त एक मसला अपनी जहन में रखो। जब भी घर से निकलोगे तो मेरे भाई आपकी एक एक कदम की गुनाह माफ हो जाएगी, एक एक निकी लिखी जाएगी कि इस नियत से जाओगे कि इस मजलिस में जाऊंगा, फलाने आलिम से, फलाने मुफ्ती साहब से एक मसला पूछूंगा। हाँ, ईमान के हल्के में भी जाऊंगा, दिन की मेहनत के काम के लिए भी जाऊंगा और एक मसला भी मुफ्ती साहब से सीख लूंगा। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जो बंदा ये नियत करके निकलता है, वहां मसला पूछा या ना पूछा, मुफ्ती के साथ टाइम मिला नहीं मिला, लेकिन मेरे भाई दोस्तों अल्लाह जल्ल शानहू उसी नियत की वजह से जो आप मसले के साथ निकले हुए हैं, मेरे भाई अल्लाह पाक एक एक कदम पर एक एक निकी, एक एक गुनाह माफ। रास्ते में मौत आ गई तो मेरे भाई उलमा के साथ हशर, कितना आसान काम है। अल्लाह मेरे भाई आज हम कितने ऐसे हैं कि मेरे भाई हमको सिर्फ नमाज के मसाइल मालूम नहीं है, बाकी मामलात की मसाइल तो बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इल्म के साथ रोशनी भी जरूरी है, और रोशनी किया है वो जिक्र है, अल्लाह का जिक्र है। मेरे भाई इल्म है, हाँ मेरे भाई रोड तो है आपके साथ, लेकिन रोड के ऊपर बत्तियां नहीं है, ना गाड़ी में बत्ती है और ना रोड में बत्ती है, तो मेरे भाई एक्सीडेंट किया जाएगा। हाँ, इल्म के साथ साथ जिक्र जरूरी है। हाँ भाई, रोड के साथ साथ रोशनी जरूरी है, रोशनी नहीं है तो मेरे भाई गिरेगा, इसी गड्ढे में जाओगे। तो मेरे भाई अल्लाह के साथ ताल्लुक हो। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानहू इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा मेरी जिक्र करता है तो मैं इनके साथ होता हूँ। तो बंदा मेरे जिक्र करता है, मैं इनके साथ होता हूँ। अल्लाह साथ हो जाए तो कौन है जो मेरे भाई क्या नुकसान पहुंच जाए। तो अल्लाह फरमाते हैं मैं इनके साथ होता हूँ। और जब बंदे की होठ मेरी याद में हिलते रहते हैं तो मैं इनके साथ हर वक्त होता हूँ, मदद के लिए, नसरत के लिए और उसको याद करने के लिए। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हमारी मेहनत ऐसे ऐसे रंग दिखाए कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मेहनत की वजह से मेरे भाई हर किसी के हाथ में तस्बीह आए। हाँ, जुबान पर अल्लाह की जिक्र की याद हो गई किसी वजह से मेरे भाई इस मेहनत में चलने से। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन इन सारे अमाल के साथ साथ मेरे भाई हर किसी मखलूक के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात के साथ मिलना, जो हालात हुजूर के थे, और मेरे भाई अल्लाह जल्ल शानहू ने जो इरशाद फरमाया है इसके मुताबिक जिंदगी गुजारना, तो मेरे भाई ये कामयाबी है, इसके अलावा कामयाबी नहीं। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारे अंदर आएंगे, मेरे भाई मेहनत से आएंगे,
हम मामला सीखेंगे, मसाइल सीखेंगे, किसी के हुकूक को सीखेंगे। मेरे भाई सबसे बड़ी बात यह है कि क़यामत के दिन अल्लाह के अहकामात में जो कोई अल्लाह जल्ल शानुहु की हुकूक हैं, जो कि इबादत हैं, इसके बाद सबसे पहला सवाल जो होगा वो बंदे के हुकूक के बारे में होगा। अल्लाह पाक सबसे पहले बंदे के हुकूक के बारे में पूछेगा। जिसके जिम्मे किसी बंदे के हुकूक हो तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हाय अल्लाह माफ करे, जन्नत में जाना हदीस में आता है इस तरह मुश्किल है, अजीब तरह कि जब वह इंसान की बदन पर किसी और का हक हो और दुनिया से चला जाए, इसके अमाल आसमान और जमीन के दरमियान में मुअल्लक होते हैं, ऊपर नहीं जाते जब तक मुसलमान का हक अदा न करे। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हक अदा करना मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से बंदा महरूम हो जाता है जन्नत से। और मेरे भाई सारे काम जो करना हो अल्लाह की रजा के लिए, कोई गरज ना हो। और मेरे भाई ये सारे काम हमारे अंदर आएंगे, इस वाले हम बन जाएंगे, अल्लाह के रास्ते में इसके लिए निकलना बहुत जरूरी है। दावत की मेहनत मेरे भाई, ईमान की मेहनत, और ईमान जो है ना दुनिया और आखिरत की कामयाबी। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना, अनबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को काम को वहूद करना, इसमें उम्मत के लिए उम्मत में इसकी मेहनत करना, मेरे भाई ये हर शख्स की जिम्मे है। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों, हजरत माज़ ज़ुहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में निकले और 1000 आयत कुरान पाक की तिलावत करे अल्लाह के रास्ते में, तो ये क़यामत के दिन अनबिया, शुहदा, सिद्दीकीन की लिस्ट में शुमार किया जाएगा। और इस तरह मेरे भाई अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में निकले और सर में दर्द हो जाए और वो इस पर सवाब की नीयत रखे कि अल्लाह पाक हमें इस पे अजर देगा, सब्र करे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ फरमाएंगे। तो इसलिए मेरे भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रास्ता बताया है, इस रास्ते से जाकर मेरे भाई दुनिया और आखिरत की कामयाबी है, इसके अलावा कामयाबी नहीं है। तो इसके लिए नियत फरमाए इंशाल्लाह। कौन साथी है कि इंशाल्लाह नियत करके अल्लाह के रास्ते में वक़्त लगाने की माशाल्लाह हिम्मत फरमाए भाई। जो तकाजे हमें पेश हो रहे हैं मेरे भाई, सबसे बड़ा काम यह है कि हमें तकाजे, हर तकाजे हम मुझसे पूरे हो जाए बस। हाँ भाई, हिम्मत फरमाए भाई माशाल्लाह।